الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حمد و ثنا کے لائق و ستائش فقط اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات اقدس ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر رزق پہنچانے والا ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے۔ اللہ مالک الالام کی حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرتن فی کل ذرۃ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، آج کی ہماری اس نشست کا عنوان آپ نے حضرت قاری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود علیہ السلام کے حوالہ سے بنیادی باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ اس حوالہ سے جو باطل نظریات اور عقائد اہل اسلام کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کچھ حد تک پھیلائے جا چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان کی تردید بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتی چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ علامات اور نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جن کو چھوٹی علامتیں کہا جاتا ہے، ان میں سے تقریباً ایک دو کے علاوہ تمام علامات اور نشانیاں وہ رونما ہو چکی ہیں، تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بڑی بڑی علامات ہیں۔ جو بڑی علامات ہیں، ان علامات کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک حضرت امام مہدی کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، ایک مسیح دجال جو دجال ہے اس کے فتنے کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے، مغرب کی جانب سے آگ کا نکلنا، اس کا تذکرہ رسول رحمت کائنات کے امام نے فرمایا ہے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے دابۃ الارض، ایک ایسا جانور آئے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، بولے گا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، یہ بڑی بڑی علامات اور نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے متصل واقعہ ہوں گی۔ ان بڑی بڑی علامات میں سے
ایک بڑی علامت جس پر اہل ایمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اور اس حوالہ سے انہیں اس کی معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے، وہ حضرت امام مہدی ان کی آمد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ہر طرف ظلم و جور ہوگا، ہر طرف زیادتیاں ہی زیادتیاں ہوں گی، نا انصافیاں ہوں گی، حق تلفی کی جائے گی، امت مسلمہ کے اوپر ہر طرف سے کفار ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کی کیفیت اور حالت اس طرح ہو جائے گی کہ امت مسلمہ پریشانیوں کے اندر الجھی ہوئی، اور ہر ایک انسان اللہ سے دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ امت کی خیر کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، کٹتی ہوئی لٹتی ہوئی امت کی رہنمائی کے لیے کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی حکمران، خلیفہ ہمیں عطا فرما دے۔ وہ حضرت امام مہدی کے بارے میں امت کی دعائیں ہوں گی۔ تو رسول رحمت کائنات کے امام نے فرمایا جب لوگوں کی دعائیں بڑھیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ان کے اندر مبعوث فرمائیں گے۔ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر کتاب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میں احباب سے اس بارے میں گزارش بھی کروں گا کہ احادیث کی کتابیں اٹھائیں اور فتن کے باب نکال کر اپنے گھروں کے اندر انہیں پڑھیں، تاکہ جس دور میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں گی، امت مسلمہ کے حالات کٹھن ہو جائیں گے، اس دور کے اندر ایک مسلمان نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے متحد لوگوں کو اسلام کی چھتری کے نیچے کیسے لانا ہے، اور جو فتنے امڑ کے آ رہے ہوں گے ان سے کیسے بچانا ہے، اس کی رہنمائی ہمیں ان ابواب سے، کتاب الفتن سے ملے گی۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے باقاعدہ اس بارے میں ابواب قائم کیے ہیں، ان ابواب کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ مختصراً یہ کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجلا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا اس وقت تک مٹے گی نہیں، قیامت اس وقت تک رونما نہیں ہوگی، حتی یملک العرب رجل، حتیٰ کہ ایک آدمی عرب میں سے لوگوں کا بادشاہ بنے گا، اور وہ آدمی کون ہوگا؟ رسول کائنات نے فرمایا اہل بیتی، اس کا تعلق میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ کائنات کے امام نے نشاندہی فرما دی ہے۔ اب آپ روئے زمین پر جتنے بھی باطل فرقے جنم لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعوے دار بنتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، کتنے ہی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ آپ کے سنا گجرات کے بھی کسی آدمی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونا کا دعویٰ کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت اور نشانی یہ بیان کی کہ وہ جو مہدی آئیں گے، ایک تو وہ عرب سے ان کا تعلق ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا۔ مطلب جس طرح میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو مہدی قرب قیامت آئیں گے، جن کی پیش گوئی کائنات کے امام فرما رہے ہیں، ان کا نام بھی محمد ہوگا، کوئی اور نام نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 پیش گوئیاں فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عرب سے ہوں گے، بادشاہ بنیں گے، خلیفہ بنیں گے، حکمران بنیں گے۔ دوسری علامت اور نشانی یہ بیان کی کہ وہ عرب کے ساتھ ان کا تعلق
میرے اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ تیسری علامت اور نشانی یہ بیان کی کہ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، اور ایک کتاب کے اندر حدیث کی کتاب میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، یعنی ایک صحابی سے نہیں کئی صحابہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ ایک انسان جس کا نام مہدی ہوگا، لقب مہدی ہوگا، نام محمد ہوگا، عرب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، بادشاہ بنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اس میں مزید وضاحت ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو مہدی ہوں گے، المہدی من اطرتی، مہدی جو ہوں گے وہ میری اطرت سے ہوں گے، میرے اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ من ولد فاطمہ تھا، میری بیٹی فاطمہ کے نسب سے ہوں گے، ان کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالی اس مہدی کو پیدا کریں گے۔ تو یہاں پہ رسول کائنات نے ایک اور ان کی علامت اور نشانی فرما دی کہ جو مہدی آئیں گے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول کائنات نے ان کی علامت اور نشانی بیان کی۔ تیسری حدیث مبارکہ جس میں مزید وضاحت ہے کہ وہ جو مہدی آئیں گے ان کا لقب کیا ہوگا، نام کیا ہوگا، ان کی تعارف اور پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، حتیٰ یبعث فیہ رجلا منی، حتیٰ کہ ان لوگوں کے اندر ایک ایسا انسان مبعوث کیا جائے گا، اسے بھیجا جائے گا، منی جس کا مجھ سے تعلق ہوگا، یا آپ نے فرمایا من اہل بیتی، اس کا تعلق میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگا، یواتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِسْمُ أَبِي وَإِسْمُ أَبُوهُ اسم ابیہ، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے اوپر ہوگا، یعنی اس کے باپ کا نام محمد بن عبداللہ، یعنی باپ کا نام عبداللہ، رسول اللہ کے باپ کا نام عبداللہ، آپ کا نام محمد۔ تو جو مہدی آئیں گے رسول اللہ نے فرمایا اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق عبداللہ ہوگا، یعنی لقب مہدی، نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور فرقے کا رد ہو گیا، ان کے باطل نظریات ختم ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ جو امام مہدی ہیں، جس طرح حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آئے اور پھر غائب ہو گئے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک حضرت امام حسن عسکری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے انہوں نے جنم لیا، ان کا نام انہوں نے محمد رکھا، لوگوں نے حضرت امام حسن عسکری کو شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی، لوگوں کے بقول، ایک فرقے کے بقول، حالانکہ اس طرح ہوا نہیں ہے، کہا کہ ان کی عمر 5 سال تھی، اپنے باپ کی نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ کی امامت کروائی، پھر باپ کی تدفین ہوئی، تو پھر لوگ ان کو بھی قتل کرنے کے لیے امڑ پڑے، تو یہ اپنے گھر کے تہہ خانہ کے اندر چھپ گئے، بعض روایات کے اندر ایک غار کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ چھپ گئے، لوگوں سے روپوش ہو گئے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، آئیے دیکھیے سنن ابی داود کی صحیح حدیث مبارکہ، رسول اللہ نے فرمایا جو آئیں گے امام مہدی، نام ان کا محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن اگر ہم محمد بن حسن العسکری کو امام مہدی مانے، تسلیم کریں، تو ان کے باپ کا نام تو حسن ہے، محمد بن عبداللہ تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو مہدی آئیں گے ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ انہوں نے کہا روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، فلاں کو بھی ملے، فلاں کو بھی ملے، اس پہ کتابیں لکھ ماری۔
हालांकि इमाम महदी के जो औसाफ और जो खूबियाँ अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाई हैं, मैं आगे चलकर बयान करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब ने अलामत और निशानी ये बयान कर दी, नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। आइए और अलामत और निशानी हज़रत इमाम महदी की समाअत फरमाइए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी का तारुफ हमें करवाया, उनकी पहचान हमें बताई। तो कायनात के इमाम ने फरमाया वो जो महदी होंगे अल महदीयु मिन्नी, उस महदी का ताल्लुक मेरे ख़ानदान के साथ होगा, मेरे अहले बैत के साथ होगा। फिर आगे फरमाया अजलल जब हाथी, फराख पेशानी वाले वो इमाम महदी होंगे। अलामात बताई हैं, निशानियाँ कायनात के इमाम ने बताई हैं उम्मत को, कहीं उम्मत भटक ना जाए, कहीं उम्मत गुमराह ना हो जाए। कई दज्जाल आएंगे, कई कज़्ज़ाब आएंगे, कई महदी होने के दावेदार आएंगे, कई ईसा होने के दावेदार आएंगे, कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे। कायनात के इमाम ने एक एक अलामत, एक एक निशानी बयान फरमाई। कायनात के इमाम फरमाते हैं वो जो महदी होंगे अजलल जबहाती, फराख उनकी पेशानी होगी, अकनल अनफी, ऊपर की तरफ उठी हुई उनकी नाक होगी, बरीक उठी हुई नाक रखने वाले इमाम महदी होंगे। यमलाउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदलन, वो जमीन को अदल से इंसाफ से भर देंगे। हमारा सवाल है जो कहते हैं कि वो गैब हो गए, तहखाने में चले गए, किसी गार में छुप गए, बताइए अल्लाह के प्यारे नबी ने जिस महदी के आने का तज़किरा किया है वो महदी तो अदलो इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे, जालिमों के लिए तलवार होंगे, इंसाफ दुनिया के अंदर कायम करेंगे। यमलाउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदलन, अदलो इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे। कमा मुलियत जौरन व जुल्मन, कायनात के इमाम ने फरमाया जैसे वो ज़मीन जुल्म के साथ, सितम के साथ, ज़्यादतियों ना इंसाफियों के साथ भरी होगी, हज़रत इमाम महदी ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। यमलिकु सब असनीना, वो बादशाहत करेंगे और उनकी बादशाहत की मुद्दत सब असनीना 7 साल होंगे। 7 साल खिलाफत उनकी होगी, हुकूमत उनकी होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी अलामत और निशानी बयान कर दी है। ज़मीन को अदलो इंसाफ से भरेंगे, हुकूमत और रियासत कायम करेंगे। 7 साल उनकी हुकूमत होगी। और एक हदीस मुबारका में 8 साल का भी तज़किरा है और एक हदीस मुबारका में 9 साल का भी तज़किरा है, लेकिन उलमा ने तरजीह 7 साल को दी है कि 7 साल उनकी हुकूमत होगी, 7 साल वो खिलाफत का निज़ाम कायम करेंगे, अदलो इंसाफ से ज़मीन को भर देंगे। आइए एक और हदीस मुबारका समाअत फरमाइए। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम महदी के बारे में फरमाया अल महदी मिन्नी, और इस हदीस के रावी सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा है और ये हदीस भी सुनन अबी दाऊद में है। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैती, जो महदी हैं वो हम अहले बैत के में से होंगे। युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, अल्लाह एक रात के अंदर ही उनको दुरुस्त कर देंगे। यानी इससे पहले जब लोग उनको पहचानेंगे, उनकी पहचान होगी कि ये महदी हैं, इससे पहले लोगों के अंदर कोई वो बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फाजिल, बहुत बड़े जाहिद, बहुत बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, इस तरह की उनकी कोई शोहरत नहीं होगी। आम लोगों जैसा आम सा बंदा होगा, कई खताएं भी उनके अंदर शायद मौजूद हों। युस्लिहुल्लाहु, रसूल कायनात ने फरमाया अल्लाह उनको दुरुस्त कर देंगे। युस्लिहुल्लाहु, अल्लाह उनको ठीक कर देंगे। हर मामले के अंदर अल्लाह उनकी रहनुमाई करेंगे, बिल्कुल सही सिमत वो चलना शुरू हो जाएंगे। फी लैलतिन, सिर्फ एक ही रात के अंदर है, एक ही रात में अल्लाह उनको दुरुस्त कर देंगे। मामलात उनके ठीक हो जाएंगी, उनकी सोच और फिक्र दुरुस्त हो जाएगी, उनका मनहज वाज़े हो जाएगा। करना क्या चाहते हैं, लोगों को लगाना किधर चाहते हैं, लोगों को बताना क्या चाहते हैं, हर एक मसले के अंदर बिल्कुल सीधा सही दुरुस्त जो मौक़िफ़ है वो इमाम महदी लोगों के सामने पेश कर देंगे और अल्लाह ताला ये अमल उनके लिए सिर्फ एक रात में ही कर देगा।
अल्लाह जिसके लिए चाहे एक लम्हे में कर दे। अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। कोई कत्ल करने के लिए आए तो अल्लाह उसे मुरीद बना दे, कोई दुश्मन बनकर आए अल्लाह उसे मुरीद बना दे। ये तो अल्लाह की कुदरतें और ताकतें हैं। मालिक कायनात जिस तरह चाहे करके दिखा दे। तो रसूल कायनात ने एक ये भी अलामत और निशानी बयान फरमाई कि वो महदी लोगों में कोई इबादत, तकवा, परहेजगारी के हवाला से पहले से मशहूर नहीं होंगे, मारूफ नहीं होंगे। एक ही रात में अल्लाह ताला उनके मामलात को दुरुस्त कर देंगे। आइए एक और हदीस मुबारक समात फरमाइए। यही हजरत इमाम महदी होंगे। इनकी पहचान के हवाला से अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ला तव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम, जिस दिन उनकी पहचान होगी लोग उनको पहचानेंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे, उनको अपना खलीफा, अपना बादशाह, अपना हुक्मरान मानेंगे। उस दिन को अल्लाह ताला लोगों के लिए तवील कर देंगे। वो दिन बहुत बड़ा दिन होगा, आम दिनों जैसा नहीं होगा। अल्लाह ताला उस दिन को लोगों के लिए बहुत लंबा बना देंगे। ये भी अलामत और निशानी अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाई है। अब जितने भी महदी के दावेदार हैं, जब उन्होंने दावा महदीयत का किया तो बताएं क्या वो दिन आम दिनों से ज्यादा लंबा था? हालांकि वो खुद दावेदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महदी के बारे में फरमाया वो खुद दावा नहीं करेगा, लोग उसको पहचानेंगे। हदीस मुबारक समात फरमाइए। हजरत इमाम महदी का तारुफ, पहचान। हजरत इमाम महदी मदीना के अंदर पैदा होंगे। उनकी पैदाइश मदीनातुर रसूल में होगी। नबी अलैहिस्सलाम के शहर मदीना मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे। लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि ये महदी हैं। जिंदगी की 40 बहारें गुजर जाएंगी, 40 साल गुजार देंगे, किसी को पता नहीं होगा कि ये महदी हैं। हत्ता कि उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि मुझे महदीयत का मनसब मिलने वाला है, लोगों की हुकूमत, खिलाफत, अमारत मेरे सुपुर्द होने वाली है। खुद भी पता नहीं होगा। 40 साल गुजर जाएंगे। हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए बैतुल्लाह के अंदर मक्का मुकर्रमा में आएंगे, मदीना से मक्का में पहुंचेंगे और यहाँ पे एक घर के अंदर वो मौजूद होंगे। इस आलम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमानों का उस वक्त हुक्मरान होगा, बादशाह होगा, यूं समझ लें कि आज का सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का जो हुक्मरान होगा उसके 3 बेटे होंगे। तीनों बेटे आपस में लड़ेंगे, उनका आपस में इख्तलाफ होगा। बाप फौत हो जाएगा, वक्त का हुक्मरान फौत होगा, तीनों बेटे आपस के अंदर लड़ेंगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जाएगा और इनकी लड़ाई के सबब मालो दौलत होगा। काबातुल्लाह में जो खजाने हैं वो खजाने ये हासिल करना चाहेंगे। दीगर खजानों के ऊपर अपनी दस्तरस हासिल करने के लिए ये तीनों भाई लड़ेंगे। इनके अंदर इख्तलाफ होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यकूनु इख्तलाफुन इंदा मौती खलीफतिन, उनका आपस में खलीफा वक़्त के हुक्मरान बादशाह के इंतकाल के ऊपर इख्तलाफ होगा। फयखरुजु रजुलुन मिन बनी हाशमा, फिर अल्लाह बनी हाशम में से एक आदमी को निकालेंगे। फयाती मक्का था, वो मक्का में आएगा, मदीना से चलेगा, मक्का पहुंचेगा। फयस्तखरिजुहुन्नासु मिन बैतिही, वो अपने घर के अंदर मौजूद होगा, किसी होटल में, किसी इमारत में, किसी बिल्डिंग में मौजूद होगा। लोग उस घर से उसको बाहर निकालेंगे कि आओ बाहर आओ, इसको लेकर बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बैनर रुकनी वल मकामी, रुकन के दरमियान और मकाम के दरमियान। रुकन उसको कहते हैं जिस कोने के अंदर हजरे अस्वद दसब है, हजरे अस्वद वाले कोने और मुकाम इब्राहिम, मुकाम और रुकन के दरमियानी जो जगह है, यूं कह ले कि बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने उस आदमी को लाकर खड़ा कर देंगे और उसके हाथ के ऊपर बैत करेंगे कि हम तुम्हारे हाथ के ऊपर बैत करते हैं, तुम्हें अपना खलीफा, अपना बादशाह मानते हैं। ये कहेंगे कि नहीं, मैं खलीफा बनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन लोग उमड़ उमड़ के आ रहे होंगे, इनके हाथ के ऊपर बैत कर रहे होंगे। एक हदीस मुबारका में ये अल्फाज भी हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, यमन के लोग
سب سے پہلے حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے اور وہ آگے بڑھ کر امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور جب یہ بیعت کر چکے ہوں گے، انہیں اپنا حکمران اپنا خلیفہ مان چکے ہوں گے، تو یہ چند ہی لوگ ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، ان کے پاس قوت نہیں ہوگی، ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ یہ اپنی حکومت اپنی سلطنت منوا سکیں۔ انتہائی کمزور لوگ، اسلحہ بھی موجود نہیں، اس وقت جو بھی چیزیں ضرورت کی ہوں گی وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوں گی، یہ بیت اللہ کے اندر ہی موجود ہوں گے کہ ان کی شہرت دور دور تک پھیل جائے گی کہ امام مہدی انہوں نے جو ہے نا وہ دعویٰ کیا ہے اور حکومت سلطنت، حکومت کو انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ تو شام سے ایک بہت بڑا قافلہ نکلے گا جو حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے، ان کی بیعت کرنے والوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شام سے لوگ آئیں گے۔ رسول کائنات رحمت عالم نے فرمایا فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّنَ الشَّامِ، شام سے ایک بہت بڑا لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے، ان سے لڑائی کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے آئے گا۔ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا مقام بیدا کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ مکے اور مدینہ کے درمیان بیدا ایک مقام، ایک جگہ، وہاں پہ وہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ خُسِفَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بھی وضاحت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ جو امام مہدی سے لڑنے کے لیے شام سے قافلہ آئے گا، ان کے درمیان سے آدھے لوگ آگے ہوں گے، آدھے لوگ پیچھے ہوں گے، بالکل ان کے درمیان سے ایسے زمین کے اندر انہیں دھنسا دیا جائے گا۔ آگے سے لوگ پیچھے کی طرف اور پیچھے والے لوگ ایسے آگے کی طرف اس زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے اللہ کی قدرت، میرے اللہ کے اختیارات، میرے اللہ کی شان یہ ہوگی کہ جتنے بھی اس قافلے کے لوگ ہوں گے سارے کے سارے زمین کے اندر دھنس جائیں گے، صرف ایک آدمی بچے گا، ایک آدمی بچے گا، وہ بھی اللہ اسے اس لیے بچائیں گے کہ جنہوں نے اس قافلے کو امام مہدی سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے ان کو جا کر اطلاع دے سکے کہ سب کو اللہ نے زمین کے اندر غرق کر دیا ہے۔ ایک آدمی بچے گا، وہ بھی اطلاع دینے کے لیے واپس لوٹے گا۔ اور دوسری میرے اللہ کی قدرت اور طاقت یہ، میرے اللہ نشانی یہ دکھائیں گے کہ جتنا ان کے پاس اسلحہ ہوگا، جتنے ہتھیار ہوں گے، تیر تلواریں زریں ہوں گی، جتنے نیزے ہوں گے، جتنا بھی ساز و سامان جنگی ان کے پاس موجود ہوگا، وہ سارے کا سارا باہر رہے گا، اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ وہ حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو اللہ عطا فرما دیں گے۔ جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لڑائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہتے ہوں گے، اللہ انہیں مال غنیمت، مال فیع کی شکل کے اندر اتنا کثیر مال عطا فرما دیں گے، اور یہ دشمن سارے زمین کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ جب یہ کرامت ظاہر ہوگی، یہ صحیح کرامت ہے، سچی کرامت ہے، جھوٹی کرامات نہیں، شعبدہ بازی نہیں، سچی کرامت اللہ ظاہر کریں گے اپنے ولی کی، تو پھر لوگ جوک در جوک بھاگتے ہوئے حضرت امام مہدی کی بیعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجور، صادق المصدوق نبی، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز آقا نے ارشاد فرمایا فَيَأْتِيهِ أَصَائِبُ الْعَرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، جب لوگ یہ سنیں گے ایک بہت بڑا لشکر امام مہدی اور ان کے جو چند ساتھی ہیں ان سے لڑائی کے لیے شام سے چلا، بیدا مقام کے اوپر انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا، تو شام کے رؤساء، شام کے بڑے بڑے ابدال، نیکوکار، صالح، بزرگ، اللہ کے ولی، اور اسی طرح عراق سے تعلق رکھنے والے اہل علم، علماء، صلحاء، اتقیاء، ان کی کثیر تعداد شام سے چلے گی اور پھر عراق سے چلے گی، جو کہاں پہ پہنچیں گے؟ مکہ پہنچیں گے، حضرت امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور پھر وہاں سے جہاد کے لیے قافلے نکلیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے یہ علامت اور نشانی امام مہدی کی بیان کی ہے۔ پھر یہاں سے جہاد کے قافلے جاری ہوں گے،
आगे निकलना शुरू होंगे, मक्का से ये आगे की तरफ निकलेंगे। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए भी एक सबक मौजूद है। इन रवायात के अंदर हदीस की हदीसें तो बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह शेख साहब फरमा रहे थे, मतवातर हदीसें हैं, बहुत कसरत के साथ हदीस मुबारका हज़रत इमाम महदी के बारे में, हज़रत मसीह मऊद के बारे में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका में से एक हदीस का ताल्लुक शायद हमारे साथ भी है। इसलिए मेरा आज का मौजू सुखन ये है ताकि हम इस मौजू को समझें, अपनी औलादों को समझाएं, क्योंकि वो वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका है। पता नहीं हमारी ज़िंदगियों में या हमारी औलादों की ज़िंदगियों में वो वक़्त आ जाए या इसके बाद करीब ही वो वक़्त है जब हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा। क़यामत के बिल्कुल करीब वक़्त आ चुका है। रसूल कायनात ने उन पेशगोइयों में से एक पेशगोई ये भी फरमाई, सुम्मा यतलाउ अर्रायातु सऊदु मिन क़िबलिल मशरिकी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मशरक़ की तरफ से काले रंग के झंडे निकलेंगे, जो वहाँ से निकल कर हज़रत इमाम महदी के साथ देने के लिए, हज़रत इमाम महदी के साथ मिलकर काफरों से जिहाद करने के लिए निकलेंगे। अगर आप अरब में खड़े हों, हिजाज मुक़द्दस में खड़े हों, तो उसके मशरक़ के अंदर आज का पाकिस्तान आता है, आज का हिंदुस्तान आता है, आज का अफगानिस्तान आता है, आज का ईरान आता है। ये वो इलाके हैं, और इससे आगे काज़किस्तान वगैरह, अज़बकिस्तान वगैरह, ये वो इलाके हैं जिनकी तरफ रसूलुल्लाह ने फरमाया मशरक़ की तरफ से काले झंडे निकलेंगे, जो हज़रत इमाम महदी के साथ मिलकर जिहाद करेंगे। हमने उस लश्कर को तैयार करना है, हमने अपनी औलादों को तैयार करना है, उन्हें पहचान करवानी है इमाम महदी की। अगर तुम्हारी जिंदगियों के अंदर वो महदी आ जाए, फिर तुमने उन काले झंडों के साथ निकल खड़ा होना है इमाम महदी का साथ देने के लिए। ये बात इब्राहिम मुहम्मदी की नहीं है, नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पकीदा ज़ुबान से इरशाद फरमाया था, फ़इज़ा रअयतुमूहु, जब तुम उन्हें देखो, वो काले झंडे जो मशरक़ से निकलेंगे, इमाम महदी को देखो, इमाम महदी के साथियों को देखो। फ़इज़ा रअयतुमूहु, कायनात के इमाम फरमाते हैं, फ़बायिऊहु, तो फिर तुम हज़रत इमाम महदी की बैत करना। फिर फरमाया वलऊ हब्वन अला सल्जी, अगरचे तुम्हें घुटनों के बल घिसट कर बर्फ के ऊपर घिसट घिसट के भी उसके पास आना पड़े, इमाम महदी के पास पहुंचना, उनकी बैत करना और उनका साथ देना। ये अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म है। आपको और मुझे हुक्म दिया है कि जब इमाम महदी का ज़हूर हो तो फिर तुमने चाहे बर्फ पर घिसट कर घुटनों के बल तुम्हें आना पड़े, इमाम महदी के पास आ जाना, उनकी ताबेदारी करना, उनकी पैरवी करना। यही निजात वाला रास्ता है और यही अल्लाह की जन्नत में जाने वाला रास्ता है। इमाम महदी फिर काफिला लेकर वहां से निकलेंगे, झगड़ा होगा, ईसाइयों से जंगें होंगी, यहूदियों से जंगें होंगी। जंगें करते करते दमिश्क के करीब जा पहुंचेंगे। दमिश्क के करीब हजरत इमाम महदी पहुंच जाएंगे। दमिश्क से पहले एक खून रेज जंग होगी। ईसाई एक कसीर तादाद के अंदर बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके इमाम महदी के मुकाबले में आ जाएंगे। रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामत और निशानी बयान की है कि जब वो आएंगे उसकी कैफियत और हालत ये होगी, उनकी तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि वो मुसलमानों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया 70 उनके झंडे होंगे, 70 झंडे होंगे और एक एक झंडे के नीचे 12-12 हजार का लश्कर होगा। यूं कह लें कि 70 मुल्क होंगे, यूं कह लें 70 बड़े गिरोह होंगे, यूं कह लें इस्लाम के 70 बड़े दुश्मन होंगे जो इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लामी कुव्वत को मिटाने के लिए, इमाम महदी और उनके पैरोकारों को मिटाने के लिए मैदान कारजार में लौटेंगे। खून रेज जंग होगी, एक दिन जंग होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन होगी, 4 दिन मुसलसल जंग होती रहेगी। आखिर जब जंग का इख्तिताम होगा, फतह अल्लाह मुसलमानों को अता फरमाएंगे। इमाम महदी और उनका लश्कर फतह पाएगा।
बहुत ज्यादा माले गनीमत मिलेगा, ढेरों के ढेर, ऐसे जैसे पहाड़ होते हैं, इतना इतना माले गनीमत आएगा। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी को इतना माल हासिल करके खुशी नहीं होगी। वजह क्या होगी? वजह ये होगी, रसूलुल्लाह ने फरमाया 100 में से 99 मुसलमान शहीद हो चुके होंगे। इतनी खून रेज जंग होगी, 100 में से 99 अफराद शहीद हो जाएंगे। एक एक खानदान, एक एक कबीले के 100 अगर अफराद हैं तो एक मर्द बचेगा उनकी कफालत के लिए। 99 अफराद शहीद हो चुके होंगे, इस्लाम पे अपनी जानें कुर्बान कर चुके होंगे। इतनी बड़ी जंग होगी, लेकिन अल्लाह फतह मुसलमानों को अता फरमाएंगे। हजरत इमाम महदी इस लश्कर को लेकर दमिश्क जा पहुंचेंगे। जब दमिश्क में जाएंगे, नमाज फजर का वक़्त होगा। हजरत इमाम महदी लोगों की सफ़ें बनाएंगे और अजान हो चुकी होगी, अकामत कही जाएगी। जब अकामत हो जाएगी इस आलम के अंदर, अब मेरे खुतबे का, आज के दरस का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। इमाम महदी सफ़ें बनवाकर नमाज के लिए अकामत कहकर अभी खड़े होंगे, तो इस हाल के अंदर आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजूल फरमाएंगे। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है। अगर रसूलुल्लाह कसम ना भी खाएं, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, जो कायनात के इमाम ने फरमा दिया, जो आका अलैहिस्सलाम ने कह दिया, जो आपके प्यारे लबों से अदा हो गया, वो झूठ नहीं हो सकता, वो सच ही सच है, वो हक ही हक है। नबी रहमत ने कसम खा के जब कह दिया, बात सिक्का दर सिक्का हो गई, पुख्ता दर पुख्ता हो गई, मजीद उसमें पुख्तगी आ गई। कायनात के इमाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला यूशिकन्ना, अलबत्ता जरूर अनकरीब ऐसा वक़्त आएगा, अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियमा, ये कि तुम्हारे अंदर मरियम का बेटा नाजल होगा, हाकमन, हुक्मरान बनेगा, अदलन, अदल करने वाला होगा, इंसाफ करने वाला, आदिल हुक्मरान की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम का जो बेटा है वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह ने पेश गोई फरमा दी। यहाँ पे 2 बातें समझ लें। पहली बात ये कि इमाम महदी जो मदीना से मक्का आएंगे, मक्का में उनकी बैत की जाएगी, वहाँ से जिहाद के लिए काफिले निकलेंगे। चलते चलते ये दमिश्क में पहुंच जाएंगे। दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर नमाज फजर की अदायगी के लिए हजरत इमाम महदी मौजूद होंगे। इस हाल में आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम के बेटे हैं, इब्नु मरियमा, ये अल्फाज याद रखिएगा। कादियानियत की मौत हो जाती है, इन अल्फाज के साथ पूरी की पूरी उनकी झूठी नबूवत जमीन बोस हो जाती है। रेत की इमारत और रेत का महल नजर आते हैं। उनके सारे दावे कि जब वो मिर्ज़े कादियानी को ईसा कहते हैं, मसीह कहते हैं, मसीह मऊद कहते हैं, हालांकि मसीह मऊद वो है जो इब्ने मरियम है, मरियम के बेटे हैं। अब्दुल गुलाम मुर्तजा का बेटा नहीं है, चिराग बीबी का बेटा नहीं है, बल्कि इब्ने मरियम जो आसमानों से नाज़िल होंगे। एक बात ये समझने वाली है, जो ईसा आएंगे, जो मसीह मऊद हैं, वो इब्ने मरियम होंगे, कोई और नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि हजरत ईसा और इमाम महदी 2 अलग-अलग शख्सियत हैं, एक शख्सियत के 2 नाम नहीं है। ये भी फिरका है, कादियानियों का ये दावा है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने सबसे पहले मुजद्दद होने का दावा किया, फिर महदी होने का दावा किया, फिर उसने ईसा मसीह होने का दावा किया, उसके बाद पता नहीं उसने क्या क्या दावे किए, वो आज का हमारा मौजू नहीं है। इख्तिसार के साथ इशारतन बात को समझा रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलहदा शख्सियत हैं जो मरियम के बेटे होंगे, और हज़रत इमाम महदी अलहदा शख्सियत हैं जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से जिनका ताल्लुक होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे, और मक्के में से जो अरब में से होंगे। अल्लाह ताला उन्हें बादशाह बनाएगा, हुक्मरान बनाएगा। ये इमाम महदी अलहदा शख्सियत है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अलहदा शख्सियत है। कादियानियत की सारे दावे जमीन बोस हो जाते हैं।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब देखें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, आगे मैं जाकर हदीस मुबारक सुनाता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर ने इस हदीस मुबारक में फरमाया फ़यक्सिरुस सलीबा, वो सलीब को तोड़ देंगे। वजह क्या? जो ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दिया गया, सूली पे लटका दिया गया, शहीद कर दिया गया, उनका दावा बातिल। व यक़्तुलुल खिंज़ीरा, खिंज़ीर को कत्ल कर देंगे। आज ईसाई खिंज़ीर का गोश्त खाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम इसको खत्म कर देंगे। व याज़उल जिज़िया था, जिज़िया को मौकूफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि सारी दुनिया में मुसलमान ही होंगे, काफिर कोई होगा नहीं, इसलिए जिज़िये वाला टैक्स वाला निज़ाम खत्म हो जाएगा। फरमाया व यफ़ीज़ुल माला, हज़रत ईसा लोगों के दरमियान माल को ऐसे फैलाएंगे, लोगों में माल तकसीम करेंगे। हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, हत्ता कि उस माल को लेने वाला ही कोई नहीं होगा। इतना माल होगा, इतनी फरावानियां होंगी, हर एक इंसान के को मालो दौलत की फिक्र नहीं होगी, माल की मोहब्बत नहीं होगी। आज हमारे दिलों में माल की मोहब्बतें हैं, माल की चाहत है। हलाल तरीके से आए हम कहते हैं माल आना चाहिए, हराम तरीके से आए हम चाहते हैं माल आना चाहिए, रिश्वत से आए माल आना चाहिए, सूद से आना चाहिए माल आना चाहिए। बहनों भाइयों के हिस्सों के ऊपर डाके डाल के बैठे हुए हैं कि हम ये हिस्से हड़प कर जाएं, माल आना चाहिए। फलां का हिस्सा खाया जाता है, फलां का माल समेटा जाता है, लपेटा जाता है, लपेटने पे लगे, समेटने पे लगे, हक पे डाके डालने पे लगे हुए हैं, दूसरों के हकूक गस्ब करने पे लगे हुए हैं। माल की मोहब्बत और हिरस आज हमारे दिलों में ऐसी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो दौर ऐसा होगा लोगों को माल की मोहब्बत नहीं होगी, माल दिया जाएगा लेकिन लोग लेने वाले नहीं होंगे। फरमाया हत्ता तकून सजदतु खैरम मिनद दुनिया व मा फीहा, एक सजदा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे ज्यादा मोमिन के लिए अजीज होगा। अल्लाह के हुजूर जबीने नियाज को झुकाना, सजदा करना मोमिन को सारी कायनात से ज्यादा कीमती लगेगा। अल्लाह की इबादत उसे महबूब होगी, दुनिया का माल महबूब नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर दलील लेना चाहते हो कि ईसा आएंगे तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, व इम्मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, हत्ता के अहले किताब हजरत ईसा पर ईमान ले आएंगे उनकी मौत से पहले पहले। हजरत ईसा के इंतकाल से कबल तमाम अहले किताब उनके ऊपर ईमान ले आएंगे, उनका कलमा पढ़ने वाले बन जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। कुरान मजीद की आयत करीमा मैं पूरी पढ़ना चाहता हूँ। इस ये जो आयत करीमा इससे पिछली और इससे पिछली 3 आयात हैं। व कौलिहिम, यहाँ पे कई बातिल फिरकों का रद्द भी है, ईसा अलैहिस्सलाम की अलामत पहचान और नजूल का तज़किरा भी है। फरमाया कि व कौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा, उनका कौल ये है, उनका मक़ूला ये है, उनका कहना ये है, उनकी बातें ये है, इन्ना क़तलना, हमने कत्ल कर दिया अल मसीह, मसीह को। कौन मसीह? ईसा इब्न मरियम, जो ईसा बिन मरियम है, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह कहते हैं वमा क़तलूहु, उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, और उन्होंने उन्हें सलीब भी नहीं दी। ना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, ना मसलूब किया गया, सूली पर लटकाया गया। ये उनके बातिल नजरियात हैं, उनकी बातें हैं, पूरे के पूरे यहूदी मजहब की यहां से जड़ कट जाती है, जिन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया। और ईसाइयों में से भी एक फिरका मौजूद है जो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था। एक फिरका उनमें मौजूद है। बाद कहते हैं सलीब दिया गया, बाद कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों का कफारा बन गए। तफसील की जरूरत नहीं है। हजरत ईसा अला नबीना फरमाया कुरान ने कि उन्हें कत्ल नहीं किया गया, उन्हें सलीब नहीं दिया गया। अगर कत्ल भी नहीं किया गया, सलीब भी नहीं दिया गया, तो फिर गए कहाँ? कहा कि वलाकिन शुब्बिहा लहुम, अल्लाह ने उनकी मुशाबत डाल दी गई, शुब्बिहा लहुम, मुशाबत डाल दी गई। 2 रवायतें हैं यहाँ पे। एक रवायत में वो जिस बंदे ने मुखबरी की थी ना कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे है, उसी के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल डाल दी गई। एक रवायत के अंदर जिसको ज़्यादा मुफस्सिरीन ने तरजीह दी है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हवारियों को ये कहा, 12 हवारी जो उनके थे उन्हें खुद कहा, कौन है तुम में से
کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ میری جگہ کے اوپر آج اسے صلیب دے دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، میں جنت کی اسے بشارت بھی دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اپنی رفاقت کی بھی بشارت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے آسمانوں کی طرف اٹھے، اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا اور اس نوجوان کے اوپر شکل ڈال دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جس کے اوپر ڈالی گئی تھی، شبہات ڈالی گئی تھی، یہودیوں نے انہیں سولی کے اوپر لٹکا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی ہے۔ عام لوگ بھی یہ سمجھتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی ہے، لیکن حواری بھی جانتے تھے اور دوسرے لوگ بھی جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ سخت قسم کے متردد ہیں، شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر قتل بھی نہیں ہوئے، صلیب بھی نہیں دیے گئے تو پھر کہاں گئے، سخت قسم کے متردد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، مَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ خیالات کی پیروی کرتے ہیں، گمان، تصور، سوچتے ہیں، صلیب بھی نہیں دیے گئے، قتل بھی نہیں کیے گئے، پھر کہاں گئے، ان کے گمانات، خیالات، تصورات، سوچے ہیں، بس اس کی یہ پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کا لفظ نہ بھی کہتے تو ہمارا ایمان تھا، رب نے کہہ دیا انہیں قتل نہیں کیا گیا، یقین تھا، لیکن رب کائنات نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہیں یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہاں گے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا، بلکہ رفع اٹھا لیا، انہیں اللہ نے الیہ اپنی طرف۔ اللہ کیا ایسے بھی اٹھا لیتے ہیں، روح بھی ہو جسد بھی ہو؟ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ صرف روح اٹھتی ہے، جسد یہیں پہ رہ جاتا ہے، ہم اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ رب کائنات فرماتے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہ اللہ جو روح لے جا سکتا ہے، وہ اللہ روح اور جسم دونوں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ عزیزاً، وہ بڑا زبردست ہے، وہ بڑا غالب ہے، اور اللہ نے ایسے کیا کیوں ہے؟ حکیماً، یہ اللہ کی حکمت والی باتیں ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کی حکمت والی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کائنات میں بسنے والوں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، جو اس حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کتاب الفتن ہے، صحیح بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، یہ ایت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، البتہ ضرور وہ عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے۔ کیا ساری دنیا کے عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے، مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں عیسائی موجود ہیں اس وقت۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے لا یؤمنن، شیخ صاحب سے پوچھیں یہ لام جو ہے نا اس کو لام تقید کہتے ہیں، اور یؤمنن کے آخر پر جو نون شد والا ہے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ جب لام تقید کا آئے تو جملے کے اندر، لفظ کے اندر تقید پیدا ہوتی ہے، اور جب ثقیلہ آئے پھر تقید تر تقید کا معنی بنتا ہے۔ کائنات کے خالق نے فرمایا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور سارے اہل کتاب جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ عیسائی ایمان لے آئیں گے قبل موتی ہی، ان کے انتقال سے پہلے۔ اور جنہوں نے کہا عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، مرزا قادیانی عیسیٰ بن کر آیا ہے، اس عیسیٰ نے نہیں آنا، وہ تو فوت ہو گئے، سری نگر کے اندر ان کی قبر بھی جھوٹی بنا دی، کہا وہاں پہ وہ دفن ہو گئے، اور خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ دار بن گئے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر دروئے زمین کے سارے عیسائی مرزا قادیانی پر ایمان لا چکے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، پھر تو ہم شاید مان لیں، حالانکہ ماننے والی اس میں ایک علت بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی موت سے قبل ساری دنیا کے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔
تو عیسیٰ अलैहिस्सलाम की पहचान यहाँ पे हो गई। आखिरी बातें करना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब रुए ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा जितनी भी हदीसें हैं कसरत के साथ, उन हदीस मुबारका में अल्लाह ताला ने जिस ईसा का तज़किरा किया है वो ईसा बिन मरियम है, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम। बेशुमार हदीसें हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना औलन नासी बि ईसा बिन मरियम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ। बि ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम के तुम सब में सबसे ज्यादा मैं करीब हूं। लिअन्नहु लम यकुन बैनी व बैनहु नबियुन, कायनात के इमाम ने फरमाया मेरे दरमियान और ईसा नबी के दरमियान कोई नबी नहीं है, ईसा के बाद अल्लाह ने मुझे ही नबी बनाया है। इन्नहु नाजिलुन, बेशक वो नाजिल होने वाले हैं। इन्नहु नाजिलुन, बेशक वो नाजिल होने वाले हैं। फ़इज़ा रअयतुमूहु, जब तुम उन्हें देखो, फ़आरिफू रजुलन मरबूअन इलल हुमरती वल बियाजी, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम उसकी पहचान कर लेना, सुर्ख और सफेद रंग के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। हुमरतन इलल बियाजी, सुर्खी और सफेदी वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। रसूलुल्लाह ने तो उस ईसा का रंग भी बता दिया है, हम फिर कैसे बहक जाएं। अगर फिर लोग भटक जाएं तो उनकी इंतहा दर्जे की जहालत ही हो सकती है। हमारे प्यारे आका ने तो निशानियां यहां तक बयान कर दी, फिर फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे ना, अलैहि सौबान, उन पर दो कपड़े होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब नाज़िल होंगे दो कपड़े पहने हुए नाज़िल होंगे। हम सवाल करना चाहते हैं, जब मिर्दा पैदा हुआ था दो कपड़े पहने हुए पैदा हुआ था या नंगा और बरहना पैदा हुआ था? हर बच्चा ही बरहना पैदा होता है। कायनात के इमाम ने फरमाया जो ईसा आने हैं उन्होंने पैदा नहीं होना, आसमानों से नाजिल होना है, इसीलिए दो कपड़े पहने हुए होंगे। अलैहि सौबान, जो दो कपड़े पहने होंगे। मुमस्सिराने, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो दोनों कपड़े जर्द रंग के होंगे, पीले येलो कलर होगा उन कपड़ों का। रसूलुल्लाह ने यहां तक बयान फरमा दिया, जर्द कपड़े पहने हुए नाजिल होंगे। मिर्ज़े कादियानी से किसी ने पूछा, मिर्ज़ा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो आसमानों से नाज़िल होंगे, जर्द रंग के दो कपड़े उन्होंने पहने होंगे, तो इस हदीस की आप तवील क्या करते हैं? तो मिर्ज़ा साहब फरमाने लगे असल में तुम्हें हदीस की समझ ही नहीं आई। अस्तगफिरुल्लाह, पूरी उम्मत को समझ नहीं आई, इसको आ गई। कहते हैं तुम्हें नहीं समझ आई। कहा जी फिर आप समझा दें। कहते हैं असल में अगर ख्वाब के अंदर किसी को ख्वाब के अंदर जर्द पीला रंग नजर आता है तो इससे मुराद बीमारी होती है। तो जो ईसा आएंगे मसीह मऊद होंगे नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बकौल मिर्ज़े कादियानी के, उन्हें दो बीमारियां होंगी कि दो कपड़े होंगे, एक ऊपर पहना होगा एक नीचे होगा। कहा कि इससे मुराद दो बीमारियां हैं। वो जो मसीह मऊद आएंगे दो बीमारियां होंगी उन्हें, एक नाफ से ऊपर की और एक नाफ से नीचे की। मुझे भी दो बीमारियां, नाफ से ऊपर निस्यान की बीमारी है, भूल जाता हूं, और नाफ से नीचे कसरत बौल की बीमारी है, दिन में 100 मरतबा पेशाब किया करता था। बेटे ने सीरत महदी में लिखा कि हजरत मसीह, वो मिर्ज़े कादियानी को मसीह कहते हैं, कि दिन में 100 मरतबा पेशाब किया करता था। जिसने 100 मरतबा पेशाब करना है उसने लोगों को नबूवत खाक सुनानी है। अस्तगफिरुल्लाह। तो कहते हैं उसे दो बीमारियां होंगी, हालांकि वो बीमारियों से पाक होंगे। अल्लाह ताला उन्हें हुसीन बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। जर्द रंग की दो चादरें पहने हुए ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। कअन्नहु रअसुहु यक़तुरु, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ऐसे है जैसे उनके सर से पानी के कतरात टपक रहे हैं। आसमान से उतरेंगे, दमिश्क की मस्जिद होगी जो आज जामिया उमविया जिसे कहा जाता है, खिलाफत बनु उमैया के अंदर इस मस्जिद को तमीर किया गया। बहुत बड़ी दमिश्क की जामिया मस्जिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दमिश्क की जो बड़ी मस्जिद होगी, जामिया मस्जिद जो होगी, वहां पे नमाज पढ़ाने के लिए इमाम महदी मौजूद होंगे। आसमानों से ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। जर्द रंग के दो कपड़े, दो चादरें उन्होंने ज़ेब तन की होंगी। एक फरिश्ता दाईं जानब, एक फरिश्ता उनके बाईं जानब होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने हाथ ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे उन फरिश्तों के ऊपर रखे होंगे और फिर नीचे उतरेंगे। मीनार से उन्हें नीचे सीढ़ी के जरिए उतारा जाएगा। हजरत
इमाम महदी के पास जब आएंगे, हज़रत इमाम महदी उन्हें कहेंगे आप लोगों की इमामत करवाएं। ईसा अलैहिस्सलाम की कैफियत और हालत ये होगी, जब ऐसे सर झुकाएंगे तो ऐसे पानी के कतरात गिरेंगे, यूं लगेगा जैसे मोती गिर रहे हैं। जब सर को उठाएंगे ऐसे लगेगा जैसे नहा नहू के नहीं आए, कोई उन पर पानी के असरात नहीं होंगे, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा होगा जैसे नहा के आए हैं और पानी के कतरात मोतियों की तरह गिर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करीब आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, नमाज पढ़ाना हमारा हक नहीं है, नमाज पढ़ाना आपका हक है, अकामत हो चुकी है, नमाज आप पढ़ाएं। सही बुखारी की हदीस मुबारक समात फरमाएं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कैफ़ा अंतुम, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा, इज़ा नाज़ला इब्नु मरियम, जब तुम्हारे अंदर इब्ने मरियम नाज़िल होंगे, ईसा बिन मरियम नाज़िल होंगे, व इमामुकुम मिनकुम, और तुम्हारा इमाम तुम लोगों में से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम इमामत नहीं करवाएंगे, बल्कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होगा, यानी वो हजरत इमाम महदी होंगे। पता चला इमाम महदी और शख्सियत है, हजरत ईसा और शख्सियत है। आइए एक और हदीस मुबारक समात करें, फिर बात को समेटें। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया ला तज़ालु ताइफतुन, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक जमात, एक गिरोह हमेशा रहेगा, युकातिलूना अलल हक, वो हक के लिए जिहाद करता रहेगा, काफिरों से लड़ता रहेगा, ज़ाहिरीना इला यौमल क़ियामती, क़यामत तक वो ये जिहाद और किताल करता रहेगा। काला, आपने फरमाया फयंजिलु ईसा इब्नु मरियम, ऐसे आलम के अंदर ही जिहाद जारी होगा, किताल हो रहा होगा, काफरों से मुसलमान लड़ रहे होंगे, मैदान कारजार सजे हुए होंगे, मुसलमान शहादतें पेश कर रहे होंगे, काफरों की गर्दनें काटी जा रही होंगी। फरमाया इस आलम के अंदर फयंजिलु ईसा इब्नु मरियम, ईसा बिन मरियम तुम्हारे अंदर नाज़िल होंगे। फयकूलु, आपने फरमाया अमीरुहुम, उनका उस वक़्त जो अमीर होगा वो उन्हें कहेगा सल्ले लना, ए ईसा आए हमें नमाज पढ़ाएं। फ़यक़ूलु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ला, नहीं नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। फरमाया इन्ना बाज़ुकुम अला बाज़िन उमरा, इन्ना बाज़कुम अला बाज़िन उमरा, कहा तुम में से ही तुम्हारा अमीर होगा, तुम्हारा इमाम होगा जो तुम्हारी नमाज पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर आगे फरमाया जो आपकी और मेरी इज्जत के लिए ये बड़े प्यारे कलिमात हैं। नबी कायनात ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तकरमकल्लाह हाज़िहिल उम्मा, ये इमामत का एजाज अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है, ये इस उम्मत की शान है कि इमाम इन्हीं का होगा। ये इज्जत है हमारी, इमामत हमारा हक था, आज हमने गुलामी को कबूल कर लिया है, ये हमारी किस्मत है। हम तो कौम के लीडर थे, हम तो कायनात के लीडर थे, अल्लाह ने इमामत हमें अता की थी, आज हम पीछे अपने अगराज़ व मकासद के लिए हो गए हैं और यहूद व नसारा को अपना कायद और लीडर बना लिया है। इमामत तो हमारा हक था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये इस उम्मत का एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत और ये अजमत और ये शान इस उम्मत को अता की है, तुम में से तुम्हारा इमाम होगा, तुम नमाज पढ़ाओ। ईसा अलैहिस्सलाम मीनार, हाँ उसमें एक और निशानी है कि जो मीनार उस वक़्त मस्जिद का होगा वो मशरिक जानिब होगा और शर्की जानब सफ़ेद रंग का मीनार होगा, उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज फ़जर का वक़्त होगा, जिस तरह पहले मैंने कहा नमाज फ़जर होगी, फ़जर की नमाज हज़रत इमाम महदी पढ़ाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मऊद उनके पीछे अदा करेंगे। फिर इतला दी जाएगी, आवाज़ आएगी, शोर पड़ेगा, दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। दज्जाल उस वक़्त निकल चुका होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके निकलने के बारे में भी निशानदेही की है कि वो इराक, शाम और इन इलाकों में से खरासां एक इलाका है, ये ईरान के और इराक के दरमियान में। रसूल कायनात ने फरमाया खरासां की तरफ से वो निकलेगा, जो है ना दज्जाल, वो दुनिया के अंदर घूमेगा, 40 दिन दुनिया के अंदर रहेगा, लोगों को फितनों में मुब्तला कर देगा। इसके लिए एक अलहदा उन्वान की और मौजू की तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मुख्तसरन यह कि वो दज्जाल चलते चलते दमिश्क पहुँच चुका होगा, उधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतला मिलेगी, आप बाहर निकलेंगे ताकि उसको कत्ल करें, लोग भी अहले ईमान भी निकलेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात अता करेंगे, ऐसी करामात अता करेंगे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे और उनकी सांस की ये हवा जो है ये जिस गैर मुस्लिम काफर तक पहुंचेगी वो मरता चला जाएगा, उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत और ताकत, ये करामात और मोजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। रसूल कायनात फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मऊद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के करीब जा निकलेंगे, वो आगे की तरफ भागेगा, लुद मुकाम पे जा पहुंचेगा। आज जहां पे इसराइल ने एयरपोर्ट बना रखा है वो तैयारी कर रहे हैं, आज उम्मत तैयारी नहीं कर रही, आज उम्मत सोई हुई है। उन्होंने लुद मुकाम के ऊपर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया हुआ है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था। एक टर्मिनल ऐसा है जिसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है और वहां पे जदीद किस्म के आलात, जदीद किस्म के तैयारे, जदीद तैयारी उनकी मौजूद है। उनका अकीदा है कि दज्जाल आएगा, यहां पे आएगा, हम यहां से उसे निकाल कर लेकर जाएंगे, उसको कत्ल नहीं होने देंगे। वो तैयारी कर रहे हैं। जिनका ईमान था, जिस उम्मत का ईमान था रसूलुल्लाह के हर कौल पे, रसूलुल्लाह के हर फेल पे, रसूलुल्लाह की हर बात पे, वो उम्मत सोई हुई है। उनका ईमान कान उठ चुका है। उन्होंने इस मसले को कभी छेड़ा ही नहीं है, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कभी इसका इल्म हासिल किया ही नहीं है कि दज्जाल को हमने कैसे पकड़ना है, कैसे उसके फितने से बचना है, कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को कुव्वतें ताकतें देगा। ये हम पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुखसरन ये वो तैयारी कर रहे हैं, एक टर्मिनल उन्होंने मुख्तस कर रखा है, लेकिन मेरे अल्लाह की कुदरतों का कोई मुकाबला कर सकता? मेरे अल्लाह की ताकत का कौन मुकाबला करे? कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, मुखबर सादिकुल मसदूक ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे जाएंगे, नेजा लेकर उसके पीछे जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। रसूलुल्लाह के इरशाद मुबारक, आप सल्लम के मुबारक कलिमात, उनका तर्जमा ये, मफहूम ये, रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल ना भी करे, ईसा अलैहिस्सलाम को देख देख कर वो खुद पिघल जाए और पानी बन जाए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और कहेंगे मुझे अल्लाह का हुक्म है मैं तुझे कत्ल करूं, फिर उसे नेजा मारेंगे, उस नेजे से उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ये मौजज़ा अता फरमाएंगे, ये ईसा नबी होंगे। और जिसने आज तक एक चिड़िया भी ज़बा नहीं की वो ईसा होने के दावे कर रहा है। मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया वो दज्जाल को कत्ल करेगा, कुफार उसकी सांस से पिघलना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, उसके हमनवाला हम पे अल्लाह नहीं होंगे। रसूल कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए और भी कई अलामतें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ये एजाज़ भी अता करेंगे कि वो रोहा मुकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी फज्जिर रोहाई, मैं देख रहा हूँ हज़रत ईसा बिन मरियम को वो फज्जे रोहा मुकाम से तलबिया कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए बैतुल्लाह की तरफ आ रहे हैं। जो ईसा बिन मरियम इस कायनात में आएंगे, अल्लाह जिन्हें नबुव्वत, जिन्हें अल्लाह ताला खिलाफत अता करेगा, मुसलमानों की हुकूमत अता करेगा, वो मसीह मऊद हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं देख रहा हूँ फज्जे रोहा मुकाम से वो तलबिया कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का पढ़ते हुए काबतुल्लाह की तरफ आ रहे हैं। शेखुल इस्लाम फाते कादियान मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी ने इस हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए दावा किया था कि मिर्जा कादियानी मैं कहता हूं तू अपनी जिंदगी में काबतुल्लाह जा ही नहीं सकता, ना तू हज कर सकता है ना उम्रा कर सकता है। लोगों ने कहा हजरत पैसे खर्च करके वो पहुंच जाए तो फिर आपका दावा किधर जाएगा? हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी ने फरमाया मुझे अपनी ज़ात के ऊपर उतना यकीन नहीं जितना रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर यकीन है। मेरे नबी का फरमान है ईसा नबी जो आएंगे वो फज्जे रोहा मुकाम से तलबिया कहते हुए आज उम्रे के लिए आएंगे। ये मिर्जा कादियानी झूठा है, कज़्ज़ाब और दज्जाल है। मेरा यकीन और ईमान है ये अपनी पूरी जिंदगी काबतुल्लाह नहीं जा सकता। तारीख इस बात की शाहिद है, लाहौर में मरने वाला, कादियान में दफन होने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पूरी जिंदगी ना मक्के गया ना मदीने गया। जो ईसा बिन मरियम मसीह मऊद आएंगे वो बैतुल्लाह का हज करेंगे,
रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह उनको हुकूमत अता फरमाएगा, उनकी हुकूमत में अमन होगा, सुकून होगा, शांति होगी। अमन व अमान कैसा होगा? रसूल कायनात ने फरमाया जितने भी जहर वाले जानवर हैं, जिनके अंदर जहर मौजूद है, अल्लाह उनके जहर ख़त्म कर देगा। हत्ता के सांप छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे, लेकिन किसी सांप में जो जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी को डस जाए, यानी अल्लाह जहर उनका ख़त्म कर देगा। शेर, चीते, भेड़िए, रसूलुल्लाह ने फरमाया मवेशियों के साथ, बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ, ऊंटों के साथ ये फिर रहे होंगे, इकट्ठे चर रहे होंगे, एक चरागाह में फिर रहे होंगे, लेकिन कोई शेर, चीता, भेड़िया किसी मवेशी के ऊपर हमला नहीं करेगा। इतना सुकून होगा, इतने आराम होगा। रसूल कायनात ने फरमाया अल्लाह जो ईसा नबी को हुकूमत अता करेंगे, सल्तनत अता करेंगे, उसमें अदावत नहीं होगी, एक दूसरे की दुश्मनी नहीं होगी। अल्लाह दिलों को पाक कर देगा, एक दूसरे के बारे में अदावतें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर मिर्जा कादियानी वो ईसा मसीह मऊद था तो सोचें आज कितनी अदावतें हैं। भाई भाई का दुश्मन है, रिश्तेदार रिश्तेदारों को एक दूसरे के कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, एक दूसरे की जदादें जब्त करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। अदावतें इतनी हैं, अगर वो अदावतें हमारे सीनों से निकाल कर हमारे चेहरों पर डाल दी जाएं तो हमारे चेहरे स्याह हो जाएं। इतनी अदावतें, इतना गंद हमारे सीनों में भरा हुआ है अपने मुसलमान भाइयों के बारे में। जरा सोचें तो सही, हजरत ईसा मसीह मऊद जब आएंगे, हुकूमत अल्लाह ता करेंगे, अदावतें खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत प्यार आपस में होगा, बुग़्ज़ नाद नफरत एक दूसरे के बारे में नहीं होगी। रसूल कायनात ने फरमाया 40 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर रहेंगे। दोबारा जब आएंगे 40 साल रहेंगे। एक एक चीज यार बता दी अल्लाह के प्यारे नबी ने, एक एक चीज की वजाहत देकर पेश गोई करके चले गए। ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, उसकी कैफियत और हालत ये होगी, सब कुछ बता दिया। फिर अगर हम बहक जाएं, मिर्ज़ा कादियानी जैसों को नबी और मसीह मान लें, तो फिर ये हमारी गुमराही की आखिरी दहलीज है। इससे ज्यादा और गुमराही क्या हो सकती है? नबी रहमत ने फरमाया 40 साल वो दुनिया में रहेंगे, 40 साल के बाद उनका इंतकाल होगा, वो फौत हो जाएंगे। लोग मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युदफनु माइया फी कब्री, उन्हें मेरी कब्र के साथ दफन किया जाएगा। इतनी बड़ी पेशगोई, युदफनु, उन्हें दफन किया जाएगा, माइया मेरे साथ, फी कब्री, मेरी कब्र के पास। आज तारीख शायद है, मैं एक दफा सऊदी अरब हम गए, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के उलमा को उन्होंने बुलाया। अल्लाह ने मुझे भी एजाज़ दिया, उस काफ़िले में मैं भी शामिल था। 23 उलमा पाकिस्तान से गए, तो उन्होंने हमें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, बताई, समझाई। उनमें उन्होंने एक वीडियो हमें दिखाई, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है, कब्र मुबारक है, उसका नक्शा हमें बताया कि अब ये नक्शा, इससे पहले ये था, इससे पहले ये था, हुजरा ऐशा ऐसे था, फिर उसके बाद ऐसे 4 दीवारी बनी, ऐसे तकोन वाली 4 दीवारी बनाई गई, और उसके अंदर कब्रों की जो शेप और सूरत है वो सारी हमें उन्होंने दिखाई। हमने उसमें अपनी आंखों से देखा, एक कब्र की जगह आज भी खाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक सोने के पानी के साथ लिखे हक अदा नहीं होता है। युदफनु माइया फी कब्री, कायनात के इमाम ने फरमाया मेरे साथ मेरी कब्र के अंदर दफन होंगे, मेरे साथ दफन किया जाएगा। और एक हदीस मुबारक, उसकी सनद जरा कमजोर है, उसमें यह है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे उठाएंगे, मेरे साथ ईसा होंगे, और हम दोनों के साथ एक तरफ हजरत अबू बकर होंगे, एक तरफ हजरत उमर होंगे। अल्लाह इस हाल में हमें उठाएंगे। तो रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पेशगोइयाँ फरमाई हैं। यजूज मजूज निकलेंगे, उनको कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निपटेंगे, तूर पहाड़ पे कैसे कौम को लेकर जाएंगे, फिर इन यजूज मजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, इनकी गर्दनों पर फोड़ा निकलेगा, फिर ये मर जाएंगे, और फिर आसमानों से बड़े बड़े परिंदे आएंगे, ऊँटों की तरह, हाथियों की तरह बड़े बड़े परिंदे होंगे, जो इनकी लाशों को उठाएंगे और दरियाओं के अंदर फेंक देंगे। फिर अल्लाह बारिश नादिल करेगा, इनकी बदबू ताफुन फैला हुआ जो वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान कायम करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी बातें, बहुत सी पेशगोइयाँ अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाई हैं, जो कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है
کہ ہم ان کتابوں کو کھنگالیں، ان کو اٹھائیں، ان کو پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے حوالہ سے تیاری کر سکیں، دجال کے مقابلے کے لیے تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، وہ ایمان جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملے گا اور دجال کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔